Ni suenggaba sakanti geram caksoa angni channel September cisa hajal geni kolkruk bonga. Ndake teacher government service kagpa aro SS school ba high school rango kagpa teacher rang plak teacher ski parangan thet exam ko ratna nanggen ne agana nirangko Aristotle si rumbai ni Supreme Court ni kata ko para kata ni ko knasona maknani getade hajal geni school sinas kamunin teacher kasoing pasakan tian iya exam ko raknananggen jemangania exam ko rajawa ragi jak parang ko de terminate beneficent ko sa ongen ne aganani rangko knana geta makna ini geman angayano titi agan dapatna ska maina primary teacher rang kaeng parang high school rango aro SS school rango kaeng parang ba plakski parang ba dunga we ndake mung wamang janggi tanga gemek ani magba phagba beta aro jonggupa ada thang dak parang ut bebel sirangan ya teacher kamko kae bisa disako aldue muthange porate chapainga chim yano nek nekanira dunga maina teacher kae teachero janggi tanggepara hajira kam kae chana kamoni kodon tonga taude manjawa maina bersirang riangha bersiri anga haude mandeni ben aro bimang ni anchirang bellerang komyang hani geman hajira mam kae chana beljimi chana de manpa jawa ini geman je mangani ya tet exam ko ragen belsigni nara nananggen belsignio machot jawde wa mangko terminate ka egalgen ne aganani ko anching knana ban sonagta manna nigeman angan dakke agan dapatna ska oe teacherang ya training kora e pel ngahode terminate kagen wa mangni jik donga de donga bisa disarang dalna chuna degree line ra e porai parang donga mai dekia ko machotatken aroba daaruruni sasungode manderang loan rang kora long time loan rang kora keparang ba donga ini geman home loan personal loan dak keparang kora keparang donga ya belsigniyo machot jaude kamoniko ragalgen ngen smode ya loan rag parangara banoniko ontna banoniko chotna mangen ini geman pengrang anga da ona simangna agananiko ska maina teacher jean skig parang ongengachim aro ni swengpa plak skig parang na agreba ni swengpa mande sakanti kon anga namme knarbo aganani ko chanchiesa katako angna komeno agan chakat bone skathang agan chakna be ndide teacher rangni iya tet examo fail ongen smode teacher rangni jak jako thongnemang life imprisonment government ni na amang jenga Supreme Court teacher rangni skik parangni jak jako thonge life imprisonment onagta apsan ngaigen maina budi pachi de mande mamang salobani skme hajira kaichana man baja uni gemen sia chibong jawa thanga chibong jawa dakge life imprisonment dakge donag dasa ongai genne anga antangde chanchi samsowa uni geman anga simangna aganat nasta eligibility pass kagpa aro MTech pass kagparang setai ya exam ko sena nangama nangjoa namide thalat khuja uni geman anga wakode agana manjawa anga tangde itikode pass ka kagen chmoba angni magba phagba jongba dagba bigba wan dakbarangni gemen anga ya katako aro antangni gemen ba anga aganatna ya katako kurang onatna ska uni gemen sorkari kasapai ya ko dakpaja china anga sorkario molatna ska uni gemen da o ya teacher kaeng gepani gemen saksa mandeni aganani video ni clips ko ngana simang na wata tenga na simang nyang na gata mangen वेलकम टीचर्स 1 सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दी है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है जो इन सर्विस टीचर हैं
उनके लिए टैट जरूरी है, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद हुई है या उनकी अपॉइंटमेंट आरटी एक्ट से पहले हुई है। उन्हें प्रमोशन चाहिए तो भी टैट जरूरी है, सर्विस में कंटिन्यू करना है तो भी टैट जरूरी है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल प्रोविजन में किया हुआ है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कुछ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ठीक दी है, क्या एनसीटी रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इनकॉर्पोरेट किया है, कुछ पॉइंट पैरा मिस तो नहीं किए हुए हैं, टीचर परेशान है। और इसके बारे में मैं कंप्लीट फैक्ट के साथ आपको डिटेल दूंगा ताकि पूरे इंडिया के जो टीचर्स हैं वो जान जाएंगे कि क्या टैट उनके लिए जरूरी है, क्या इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा, करना चाहिए, उसके लिए कोई स्कोप है। इन सब को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यह है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इस जजमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट दोनों ही पार्टी थे। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में जज ने यह कहा है कि हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिन टीचरों की सर्विस में 5 साल रह गए हैं, 5 साल से कम है, उन्हें टैट करना पड़ेगा। अगर प्रमोशन लेनी है तो भी टैट करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जिनकी सर्विस 5 साल से ऊपर है उनको भी 5 ऊपर है उनको तो टैट करना ही पड़ेगा और विद इन 2 ईयर करना पड़ेगा। अगर वो टीचर टैट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें सर्विस छोड़नी पड़ेगी। अगर खुद नहीं छोड़ते उन्हें कंपल्सरी रिटायर कर देंगे और उन्हें जो उनके बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं अगर वो नहीं कर पाते टैट तो उन्हें सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे है इसी में अब हम कहेंगे कि एमएचआरडी इस पूरे जजमेंट में एमएचआरडी की 2017 के लेटर का इस्तेमाल किया गया है। उस लेटर में ये सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर का हवाला देकर ये कहा है कि उसमें भी यही लिखा हुआ है कि टैट जरूरी है, टैट करना ही पड़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या एनसीटी ये बात कह रहा है। एनसीटी देख लेते हैं। एनसीटी ये कह रहा है जिन टीचर्स को, ये लेटर 2017 में निकला था, कि जिन टीचर्स को सर्विस में रहना है और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है जो एनसीटी प्रिस्क्राइब करती है तो उन्हें 31 मार्च 2019 में करना पड़ेगा, पुराना केस था। लेकिन जो पैरा 1 पैरा 2 रेगुलेशन में बात एनसीटी करती है, एनसीटी उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात कर रही है, टैट की बात नहीं कर रही है। जिनकी अपॉइंटमेंट 29 जुलाई 2011 में से पहले उनकी एड निकली है उनके लिए टैट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे विश्वास है, इस रूल को मिस कोट किया है उन्होंने। अब उसको आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये आपकी रेगुलेशन में है। एक ऐसे ही हुआ था कि जब ये केस चल रहा था महाराष्ट्र तमिलनाडु में किसी टीचर ने वहां पे रिप्रेजेंटेशन की मैटर किया और वहां पे भी जो एनसीटी ने इसका रेगुलेशन किया, रेगुलेशन में उन्होंने क्या डाला, उन्होंने यही कहा है कि पैरा 1 पैरा 2 में अगर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसमें टैट का जिक्र कहीं नहीं है क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट 29 जुलाई 2011 से पहले उनकी एड निकली हुई है। और इन सब चीजों में ये एनसीटी रेगुलेशन है, इसमें भी साफ लिखा हुआ कहीं टैट का जिक्र नहीं है। और अगर हम इस सारी कड़ी को पढ़ते हैं कि कहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एरर किया, ये एनसीटी रेगुलेशन में जाते हैं। अब आर्टिकल 42 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आर्टिकल 42 ये कहता है जब कोई लॉ क्लियर नहीं है, उसमें कुछ गैप है, तो आर्टिकल 42 का इस्तेमाल किया जाता है उस गैप को क्लियर करने के लिए और कंक्लूजन देने के लिए। लेकिन यहां एनसीटी रेगुलेशन 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 उसमें साफ लिखा हुआ है टीचर अपॉइंटेड बिफोर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन से पहले की जो डेट में टीचर अपॉइंट हुए हैं उनकी अपॉइंटमेंट एनसीटी रेगुलेशन 2001 या 2002 के हिसाब से होगी और एज पर जो स्टेट्स के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके द्वारा होगी। अब इसमें कोई गैप तो नहीं है, साफ लिखा हुआ है। बस प्लस जो स्टेट्स के जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते हैं जो स्टेट्स को ये अलाउ करता है कि अपने रूल बनाए जाएं। नाउ अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर आर्टिकल 309 वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है स्टेट अपने रूल्स बना सकते हैं, अगर वो अपने रूल बना सकते हैं तो ये आर्टिकल जो 142 का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया जबकि रूल बिल्कुल क्लियर थे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने मजबूर करती हैं कि इस जजमेंट में फ्लॉ है। इस जजमेंट का मतलब है पूरे भारत में तकरीबन 24 लाख जो टीचर्स होंगे, उस 24 लाख में तकरीबन 10 लाख से ऊपर टीचर इसमें अफेक्टेड होंगे जिनका टैट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट 29 जुलाई 2011 से पहले हुई है।
इवन उनकी एड पहले निकल चुकी है, चाहे अपॉइंटमेंट उनकी 2012 में क्यों ना हो, 13 में हो ना हो, अपॉइंटमेंट की एड मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से यहां सुप्रीम कोर्ट में ने थोड़ी सी गलती की है, कुछ एनसीटी की रेगुलेशन पैरा 4 को उन्होंने इग्नोर किया है। तो कंक्लूजन इस पूरे केस का ये है, जो पूरी इंडिया में जो टीचर्स हैं जो अफेक्टेड हैं, अगर एनसीटी इस पे कार्रवाई करती है, जो मुझे श्योर नहीं करेगी, हो सकता है चैलेंज करने में एनसीटी आगे आए अगर स्टेट गवर्नमेंट ना करे। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, सभी स्टेट गवर्नमेंट में कोशिश चल रही है कि इसको चैलेंज किया जाए जहां टीचर अफेक्टेड है। इवन टीचर्स की जो एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया में, वो भी इसको चैलेंज करेगी और चैलेंज करना भी चाहिए, क्योंकि रूल से ऊपर कुछ नहीं है। अगर अंडर आरटी एक्ट एनसीटी को एक एकेडमिक अथॉरिटी बनाया है टीचर क्वालिफिकेशन फिक्स करने के लिए, और क्वालिफिकेशन उसने ऑलरेडी फिक्स कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एरर किया है, जान के अनजाने में किया होगा। हो सकता है जो पैरा 4 उनकी नॉलेज में ना लाया गया हो, क्योंकि पूरी जजमेंट में कहीं भी वो पैरा 4 23 अगस्त 2010 की नोटिफिकेशन का मेंशन नहीं है, जो बिल्कुल क्लियर करता है कि जिनकी जो एडवर्टाइजमेंट है 23 अगस्त 2010 या उसके बाद में 29 जुलाई 2011 से पहले निकल चुकी है, उन्हें टैट की जरूरत नहीं है, और उसमें प्रमोशन में भी टैट की जरूरत नहीं है। जो हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वो फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए है, क्योंकि इन टीचर्स की जब अपॉइंटमेंट हुई थी 29 जुलाई 2011 से पहले की एडवर्टाइजमेंट में, तो उनके रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन किया हुआ था उन्हें टैट नहीं चाहिए। उनके रिक्रूटमेंट रूल्स में, उनके सर्विस रूल में ये मेंशन किया हुआ था कि उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी प्रमोशन जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन और एज ऑफ सर्विस के बेस पे होगी, टैट के बेस पे नहीं होगी। जजमेंट रॉन्ग है। अभी सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट है, जो अफेक्टेड हैं, अगर उन पे प्रॉब्लम आती है उसके इसको चैलेंज कीजिए। अगर कहीं भी मेरी जरूरत है, हेल्प, टेक्निकल हेल्प की जरूरत है, आप मुझे नीचे वीडियो पे मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। मैं आपके साथ हूं।